جی ویلکم بیک ناظرین. اور میر صاحب بات کر رہے تھے, آپ بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو اسلام آباد میں گزشتہ دنوں سے بہت سارے اہم اجلاس ہو رہے ہیں اور پرائم منسٹر نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کی اور بھی بہت سارے اہم فیصلے بھی کیے گئے, اجلاس بھی ہوئے. اور خاص طور پر سب سے بڑا جو فیصلہ عوام پر جو بجلی گری ہے وہ بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری سچویشن, یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ اچھا میں جو پرائم منسٹر جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنا دورے کے حوالے سے بتایا, امپورٹنس بتائی, اور کچھ غالباً یہ بھی کہا گیا کہ ان کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے فیوچر میں, یہ بھی انہوں نے کیبنٹ کے سامنے رکھا. اس قسم کی پرائم منسٹر خود بہت ایک پھنسی ہوئی صورتحال میں ہے. کورٹ کی طرف سے مقدمہ ہے, کورٹ میں مقدمہ ہے. اب فہمیدہ مرزا نے بھی کہہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا پبلکلی کہ اور اسمبلی میں آ کر کہ فیصلہ جو اسپیکر کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا. مطلب اب ایک ڈیسنسی کی طرف سے پارٹی کچھ رستہ اختیار کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی, لیکن جو فیصلے اہم کرنے تھے وہ مثلاً اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا, وہ مثلاً توانائی کے مسئلے کا فیصلہ تھا. توانائی کے مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ آج 3 ارب روپے جاری کیے ہیں حفیظ شیخ صاحب نے, وزیر خزانہ نے. وہ کہتے ہیں پیٹرولیم والے کہ ہم نے 10 ارب مانگے ہیں. اچھا اب وہ بحث ہی بڑی مزیدار ہوئی ہے, وہاں تلخ کلامی بھی تو نہیں ہوئی, فکر بازی حفیظ شیخ نے بھی کہا. اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کے پاس پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے, لوگوں نادہندہ لوگ ہیں ان سے پیسے نہیں دے سکتے. سندھ گورنمنٹ نے 4 ارب دینے تھے وہ دے دیے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ کے بھی 4 ارب پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے 7 دن کے اندر کہا کہ وہ بھی مل جائیں گے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ چیک جاری کرے گی تو وہ دیں گے نا جی. 4 ارب انہوں نے دینے ہیں, اور کچھ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کے, یہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں وہ کچھ دعویٰ کرتی ہیں کہ بھی یہ غلط. تو بہت سے پیسے تو انہوں نے سرکاری سیکٹر سے لینے, وہ بھی اکٹھے کر دیے, وفاق سے بھی لے لیے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کے جی ہمارا جو پی ایس او ہے وہ اگرچہ خود بھی بہت سے معاشی تنگی کا شکار ہے, لیکن وہ تیل اور گیس ان لوگوں کو ہم فراہم کر رہے ہیں. پی ایس او تیل فراہم کر رہا ہے, ہم گیس بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ پاور جنریشن یونٹس جو ہیں وہ چلیں اور لوگوں کو بجلی ملے. اچھا یہ تو ایک اصولی بات ہے. پھر کل یہ کہا گیا اچھا بجلی کے نرخ آپ نے بڑھا دیے ہیں, کہتے ہیں جی اب بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. وہ سبسڈی کیا ہے؟ سبسڈی یہ جو پیسے آپ لیتے نہیں ہیں, سبسڈی یہ ہے کہ آپ پانی کے منصوبے بناتے نہیں ہیں, سبسڈی یہ ہے کہ آپ نے تھر کول کے منصوبے کو یہ کہہ کے شیلف کر دیا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. بھائی 20 سال سے آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہر بار کہتے ہیں قابل عمل نہیں ہے. اب سمر مبارک بند کو آپ نے دیا, اس نے بجلی بنا کے دکھا دی, اب وہ گیسیفیکیشن کر کے دکھا دی. اب اس نے کہا پیسے دو میں اسے بجلی بنا دوں, انہوں نے کہا جی اتنی تھوڑی بجلی ہمیں نہیں چاہیے. تو بھی آپ بڑا منصوبہ کسی غیر ملکی کا فرم کو دے دیں, اگر آپ کو اپنے سائنسدانوں پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ یہ کر لیں, کچھ کریں تو صحیح نا جی. اچھا اب ان کو یہ بھی کہا کہ گیس اور تیل کے جو کنویں سندھ میں ہیں وہ وفاقی حکومت یعنی کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے کر دیے گئے. کیوں بھئی ان کنووں سے اور گیس نکل سکتی ہے, نکل کیوں نہیں رہی؟ آپ نے گیس کے نرخ کا جو وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل فرم کے ساتھ آج سے کوئی 10 سال پہلے وہ $4 کا تھا, آپ $2.5 دے رہے ہیں ان کو, اور آنے والے دنوں میں اب $6 دینے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں بھی ہمیں پیسے دو گے تو ہم رگز جو ہماری کھڑی ہیں ان کے ذریعے اور گیس نکالیں, ورنہ ہم کیوں نکالیں, کیوں تیل نکالیں, مہنگا پڑے گا. یعنی ہر کی کام جو ہے بیڈ گورننس کر دی جائے, جس کی وجہ سے تو اب یہ طے کیا گیا ہے کہ پیسے اکٹھے کرو. اب جو منصوبے ہمارے کول کا منصوبہ تھا ابھی چھوڑیں, ابھی تو چلتا دکھائی نہیں دیتا. پن بجلی کا منصوبہ بھی کوئی چلتا دکھائی نہیں دیتا. ابھی تو یہی ہے کہ گیس ان سے نکالی جائے, کچھ کیا جائے اور گیس ان کو دی جائے, اور نہیں تو ایل پی جی باہر سے منگوانے کا ایک منصوبہ ہے, وہ نیچرل گیس جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے نہیں آگے بڑھا. کچھ نہیں 4 سال میں انرجی سیکٹر میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک قدم نہیں اٹھایا, اور رینٹل پاور لے آئے تھے یہ کہہ کے کہ یہ 2 سال لگیں گے. اس کا مطلب تھا کہ اتنے عرصے میں آپ کچھ اور کریں, وہ ہم نے کیا نہیں, اور وہ گلے میں ڈال دیا. اتنا مہنگا سودا, اتنا مہنگا جو توق تھا ہمارے گلے میں پڑا ہوا رینٹل پاور کا. تو ان ساری صورتحال میں لگتا ہے کہ اب وہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں, کیونکہ اتحادیوں نے کہا ہے, کیبنٹ میٹنگ میں یہ خبر آئی ہے, کاف لیگ پرویز راج نے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ بند نہیں کی تو باہر پبلکلی کہا ہے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. صدر آصف علی زرداری نے بھی تو میر صاحب کہہ دیا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بجلی ختم, لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں. پبلک جلسوں میں کہنا اور ہوتا ہے, ایکچوئل ختم کرنا اور ہوتا ہے. ختم کیسے کریں گے؟ آپ ان کو پیسے پرووائڈ کریں گے, پیسے پرووائڈ کریں گے تو لوڈ. اچھا اب ان کو پیمنٹ کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایک بانڈ ہے, ٹرم ڈپازٹ سیکورٹی بانڈ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں جی. اچھا وہ جاری نہیں ہو پا رہے, مطلب پیسے لینے نا, ہم نے پیسے یا تو بینک سے قرضہ لیں, پیسے ہم نے کہا کہ سیکورٹی بانڈ یا اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی, وہ یا حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ خرید لیں گے. یہ لوگ ٹرم ڈپازٹ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ خرید لیں گے, اس پہ 6% کا قرضہ سود ہوتا ہے جی.
कम शरह पर होता है। इंटरनेशनल अदारे कहते हैं क्योंकि हमने वहां से लेना, लोकल तो किसी बैंकों के पास इतना पैसा देने का आपको है नहीं। उनका कहना यह है कि जनाब 10% तो आप वैसे डेफिसिट पे जा रहे हैं, तो 10% तो हमें वो दें, यानी 100 रुपए का अगर बॉन्ड है तो आप इसको 90 रुपए का ट्रीट करें और 6% हमें वो अलग दें। तो वो इतना महंगा पड़ा है कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा, ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पा रहे, इनको पैसा जो है वहां से इकट्ठा करके कैसे उनको देना वो बन नहीं रहा। जोर लगा के कुछ सूबों से पैसा ले रहे हैं, कुछ इससे ले रहे हैं, कुछ इससे ले रहे हैं। भाई नए मनसूबे कौन लगाएगा, कैसे चलाएंगे? आपकी अगर आपने आज नवाज शरीफ ने कहा है वो अलग बात होगी कि कालाबाग डैम अगर सिंध तैयार नहीं है तो हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब ये कि भाषा डैम पे भी आपने कुछ नहीं किया ना अभी तक। तो हमने जमीन ले ली, हमने टेंडर कर दिया, हमने ये कर दिया, अभी तो ऑन ग्राउंड भाषा पे कुछ नहीं है। कालाबाग में बहुत कुछ था, वो आप बनने नहीं दे रहे सियासी तौर पर जी। नवाज शरीफ तो कह सकते हैं कि अगर सिंध तैयार नहीं, फलां तैयार नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, उनकी तो सियासत है। लेकिन हम जब तजिया करते हैं तो नजर आता है कि कालाबाग डैम ना बनाकर जो आज से 8 साल पहले बन गया होता, हमने एक जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ। तो अब कहते हैं सब्सिडी दे रहे हैं हम 3 रुपए पता नहीं कितने पैसे की, कहां से बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आप महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अगर पानी पे नहीं जाएंगे, कोयले पे नहीं जाएंगे, आप इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे तो आपकी बिजली महंगी रहेगी। तो यही वजह है कि हम रोना भी रो रहे हैं, कहते हैं जी सर्कुलर डेट बढ़ गया है, उसको देने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। आज 3 अरब जारी किए हैं, वो कहते हैं 10 अरब जारी करो, लेकिन ये सब टेम्परेरी रिलीफ है, कोई परमानेंट हल नहीं है मसले का। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा मेरे साहब कुछ बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। पाकिस्तान पर स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं और इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से भी स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कहानी सामने आई है। पहले तो बताइएगा इस खबर का क्या पस मंजर है, क्या कहानी है, और खासतौर पर इंडिया में ये जो एक स्कैंडल सामने आया इसको आप कैसे लेते हैं? देखें जी, असल तो स्कैंडल इंडिया में बनते हैं। बुकीज जो हैं, ये सिट्टेबाज जो हैं, ये जुएबाज जो हैं, ये बम्बे में होते हैं। हमारे जो लोग होते हैं वो तो उनके चमचे होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, उनके आलाकार होते हैं और कुछ नहीं होता। इन्होंने बड़े सलीके से पाकिस्तानियों को फंसा के बिल्कुल ऐसा, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसका एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन में से बहुत से लोग जो थे कि जो क्रिकेट के ज़माने में बेट करते रहे थे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के खिलाफ करते रहे, लेकिन इसके शौकीन थे। अब हो ये गया है कि इन लोगों को अब इंडिया में ये चीज़ देखा ना, जनूबी अफ्रीका में कोरोने फंसा था, अफ्रीका शेनवान फंसा था, दुनिया बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस तरह पूरी तरह पाकिस्तान फंसा है तो हमें तो बिल्कुल जैसे एक नेगेटिव खुशी नहीं हो रही कि इंडिया में भी अब वहाँ की ये प्रीमियर लीग है, ये जो कमर्शियल बुनियादों पे क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट एक साहब जहाँ कह रहे थे क्रिकेट तो है जुआ, ये हमारी जो इनकी ये प्रीमियर लीग है ये इन्होंने पैसे के जोर पे बनाई है जी। एक पहले कैरी पैकर था, दुनिया में क़यामत आ गई थी क्रिकेट की दुनिया में कि साहब देखिए उसने पूरी दुनिया के खिलाड़ी खरीद लिए हैं और हमारे 8 खिलाड़ी चले गए थे, टॉप के खिलाड़ी, किसी का नाम नहीं, सब उसी में थे। और वो कैरी पैकर में शामिल होकर वो उस जमाने में उन्होंने बड़ी कमाइयाँ की। और ये कलर वन डे में जो पहने जाती है और सफ़ेद बाल से जो बाल कराया जाता है, ये उसी ने इंट्रोड्यूस किया। टीवी चैनल का मालिक था, चैनल 9 का। तो उसके बाद अब तो कई इदारे हो गए जो इंडिया में, चूंकि अब उनका मीडिया बहुत फैल गया है, तो मीडिया क्रिकेट और उनकी जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड ही है ना वो उनका, बॉम्बे अब मुंबई हो गया लेकिन है बॉलीवुड, मॉलीवुड नहीं हुआ, वो सब मिलकर ना जी वो अब एक आता है, वो फनकार कह लें, अदाकार कह लें, वो आता है, वो एक चीज़ को खरीदता है, फिर उसके नाम से वो पॉपुलर होती है, फिर खिलाड़ियों को खरीदते हैं। वो कहते हैं ये पैसा भी इतना नहीं है जितना इस खेल में पैसा होना चाहिए। बुकीज आते हैं, वो कहते हैं गलत बाल कराओगे, नो बॉल फराम बॉल कराओगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। वो सारी खेल वहाँ खेली जा रही है, लेकिन इंडियन बोर्ड होशियार है, उसने उसी वक्त सस्पेंड कर दिया अपने 5 बंदों को। उसने उसी वक्त ये किया कि इंस्ट्रक्शन जारी कर दी कि आप किसी से मिलोगे नहीं, खिलाड़ियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये होगा वो होगा, सब जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कुछ नहीं कर सका। इजाज भट्ट साहब थे उसके सरबराह, अगर वो उस वक्त इन्हीं तीनों खिलाड़ियों पर या 2-4 और पर बंदी लगा के इनको वापस मुल्क भेज देता कि इनके फैसले वहाँ किए जाएंगे, तो आज हमें ये सूरत हाल न देखना पड़ती कि हमारे एक अच्छे खिलाड़ी भी, आमर बहुत अच्छा बॉलर है, दुनिया में कम बॉलर हैं जो अपना इतना पोटेंशियल रखते हैं, इतने इम्कान रखते हैं जितने आमर के हैं, तो वो हमने खो दिए एक तरह के जी। आसिफ तो बिल्कुल शायद अब दोबारा फील्ड में आए कि ना आ पाए, आमर तो हो सकता है दोबारा आ सके, और सलमान बट का तो कैरियर ही खत्म हो गया ना जी। हमने अपनी क्रिकेट के साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन ये बात भी सोचने की है कि ये खेल अब सिर्फ जुआ का खेल बन के रह गया है, सिट्टाबाजी का खेल बन के रह गया है, और इंडिया इसका सेंटर है जी। सारे बुकीज जो हैं
बम्बे में होते हैं। हम कौन होते हैं जी इतनी लंबी लंबी बैटें लगाने वाले और ऐसे लंबे लंबे कारोबार करने वाले? हम तो छोटे छोटे जवारी हैं, छोटे छोटे जुए खेलते हैं, लंबा काम तो हमें आता भी नहीं। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी भारत जो है वो बड़ी चालाकी से उसने रुख मोड़ दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो फैसला ना किया। एक और बड़ा अहम वाक़या मीर साहब, पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती भारत से खुसूसी त्यारे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो बहरी कज़ाकों के कब्जे से जो छुड़ाने के लिए मग़वियों के तावान भी वसूल किया जा रहा है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज हैं, उन्होंने 14 करोड़ देने का कहा, और ये खुसूसी जो है सदर आसिफ अली जरदारी के कहने पर हुआ है। क्या लगता है आपको, और ख़ास तौर पर इनके हवाले से क्या कहानी नज़र आती है? देखिए जी, इंसानी हमदर्दी का मसला होता है, हम सब इसका साथ देते हैं। खलील चिश्ती साहब बेचारे 20 साल से वहाँ कैद थे, गए थे अपनी वालदा को मिलने पे, कत्ल का मुकदमा बना दिया उन पर और वहाँ कैद थे। और 20 साल के बाद जब ये अजमेर शरीफ गए तो किसी ने कहा कि भाई हम ये भी दरख्वास्त लेके जाएं, तो जरदारी साहब ने वहाँ ये बात कन्वे की और गुडविल जेस्चर के तौर पर मनमोहन सिंह ने भी कहा कि हम इस पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल पर या बेल पर रहा कर दिया और कहा कि इनका पासपोर्ट वो आए, लेकिन खसूसी त्यारे से उनको मंगवाया गया। आसिफ जरदारी साहब के ने भेजा त्यारा कि इनको इस त्यारे पर लेकर आओ। अच्छा, ये एक पोलिटिसाइज करने का या एक चीज़ को हाईलाइट करने की बात, अब उन्हें साइंसदान कह रहे हैं, वो साइंस के उस्ताद हैं। हाँ, साइंसदान तो वो होता है जो रिसर्च वर्क पे भी वहाँ से काम कर रहा है, वो हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जी, हमें ठीक तौर पर उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है, कल एयरपोर्ट पर वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मेल हैंडलिंग की जर्नलिस्टों के साथ भी, और ये इस तरह के वाक़यात हुए। ये आज जब वो उनको अपने घर पहुंच रहे हैं तो दिखाया गया कि उनके बच्चे जो हैं पाकिस्तानी परचम को लहरा रहे हैं। शो किया गया कि ये पार्टीजन इशू नहीं है। आप आसिफ जरदारी साहब ने त्यारा ज़रूर भेजा है, उन्होंने रिक्वेस्ट ज़रूर की थी, लेकिन इसकी आप पोलिटिकल माइलेज न लें, बल्कि इसको पाकिस्तान की फतह करार दें। वो जो दूसरा बहरी कज़ाकों का मसला है वो भी बड़ा सेंसिटिव है। देखिए, ये दूसरी तीसरी बार वाक़या हुआ है, उसमें गवर्नर सिंह जो है वो एक्टिव होते, 14 महीने से वो बंदे कैद हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ उसका? इंटरनेशनल कुछ कानून है, खुले समुद्रों में आप कज़ाकी नहीं कर सकते, आपके चैनल होते हैं। ये जहाज जिन पर ये अमला मुलाजम होता है पाकिस्तान में आकर सस्ते दामों, वो किसी ऐसे मुल्क के जहाज होते हैं जो एक बिल्कुल ही, जिन्होंने ऐसे ही एशियाई मुल्कों में रजिस्टर्ड जहाज होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है ना कुछ और होता है। अब वो जहाज का मालिक कह रहा है जी मैं कुछ पैसा मैं दे दूंगा, बाकी आप दें। ये उसकी जिम्मेदारी है बैनुल अक़वामी कानून के तहत। हम उस जिम्मेदारियां, या तो हम अपने बंदे जो हैं इन कंपनियों में मुलाजमत करने से उन पर पाबंदी लगा दें, और ये कोई असूली बात नहीं है कि उन पर होता है हर 2-4 महीने के बाद हम खड़े हो जाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, रियाज मलिक साहब आ गया जी, सदर साहब के कहने पर उन्होंने पैसे दे दिए जी, बाबा उधर वो हमारे इशरतुल अब्बास साहब इंतजार कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने बच्ची को रिसीव किया था कि मेरे अब्बू को रहा करो, इस बार भी एक बच्ची को रिसीव कर रहे हैं, मेरे अब्बू को रहा करो। और ये कि एक पार्टीजन सा मसला भी बन जाता है इंसानी हमदर्दी के साथ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बहरी गुजरगाहों की अगर हिफाजत हम दूर तक नहीं कर सकते, अपने चैनल का दफा नहीं कर सकते, तो उन मुल्कों के जहाज़ों को पाकिस्तान में आने पर पाबंदी लगाई जाए, या अपने लोगों को उनकी मुलाजमत करने से रोका जाए जो इंटरनेशनल समुद्रों में, बैनुल अक़वामी समुद्रों में सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। अमेरिका के जहाज़ पे करें, अगले दिन हमला करके वो छुड़ा कर ले जाएंगे जी। ना हमारी बहरी बेड़े की वहां तक मार है, जिस समुद्रों में बहरी बेड़े क्यों घूमते हैं, तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए घूमते हैं, और अगर वो नहीं करते तब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करें तो वो ये काम करती हैं। हम कोई भी नहीं करते जी, वो कज़ाक दंदाते फिरते हैं, कभी उसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया। हालांकि किस्सा ये होता है कि जो कंपनियां, जो मालिक होते हैं जहाज़ के, वो अननोन लोग होते हैं, सस्ते पैसे में भर्ती करके वो हमारे लोगों को ले जाते हैं, और उसका नतीजा वही निकलता है कि जो चीप लेबर को हासिल करने वालों के हाथ से निकल सकता है। मीर साहब, आपकी इजाज़त से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और नाज़रीन ये स्टूडेंट्स जो हैं मोहम्मद इरफान हैं, जुनेद मलिक हैं, ऐमन खान हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पर मोहम्मद इरफान, क्या आपके पास सवाल है आज के मुल्क और सियासी हालात के हवाले से?